This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. Hi, everybody. Welcome to Storytellers Cafe this Sunday evening, 9 p.m. Indian Standard Time and 11:30 a.m. Eastern Time. So, how are you today? Are you all set to listen to stories on Storytellers Cafe? Please bring your favorite drink in hand, cozy down, settle down, and let's listen to stories. Stories of hope, stories of courage, stories of inspiration, so that for about 40 to 45 minutes, we can forget all our troubles. You know what happens when you tell a story, my friends? You spark a connection. That is how human beings have communicated since the beginning of time, by telling stories. Stories have been told since even before humans learned to read and write. Everyday events became stories to tell children. Scribes and priests told stories of religious affairs, and leaders told heroic tales of their adventures. From a storytelling perspective, the way to keep an audience's attention is to continually increase the tension in the story. And we are going to do that. Today, we have a wonderful guest in our studios, and I'm your host, Usha Venkatraman from Mumbai. And let me bring in my guest onto the screen, and then I will introduce her. Hi, Samvedana. Welcome to Storytellers Cafe. Namaskar. Hello. Hello, everyone. Well, let me tell you about Samvedana, our guest. Samvedana is a storyteller, lyricist, journalist, and the founder director of Kahani Pool. That's her storytelling initiative. Established Hindi poet and writer, recipient of the prestigious award of Hindi literature by the Madhya Pradesh government, Vageshwari Samman, in 2007 for her first compilation of poems. Samvedana worked as an art and culture correspondent for one of the leading English newspapers of the country and served for a prominent Hindi newspaper as feature desk in charge and worked for a Hindi television channel in the early days of her career. Samvedana has presented papers on storytelling at international symposiums. Notable among them, and I have to mention them, storytelling and pedagogy in Indian context in an international conference at Guangdong University, China in October 2016. Samvedana will talk about all these. Multiculturalism and children in an international conference at Udayana University, Denpasar, Bali in 2017. She participated in a 4-day international seminar on fairy tales at Sintra, Portugal in 2018 and was also invited as a resource person at international seminar on fairy tales at Sintra, Portugal in March 2019.
Samvedana also trains teachers and aspiring storytellers on basics of storytelling, pedagogical aspects of storytelling, therapeutic storytelling, and anthroposophy of storytelling. Her second compilation of Hindi poems is soon going to be published, also in the pipeline. I think she's been working on this during the pandemic, is a short Hindi novel. Samvedana has been living in Mumbai for the last 13 years with her husband and daughter. She loves to travel, dance, and cook at leisure and reads most of the time. You can get in touch with Samvedana. Her Facebook page is Kahanipur, and her email will be texted in the chat box for you. So, without further ado, I welcome Samvedana Rawat Amitabh to our studios. Welcome, Thank you. Samvedana. Thank you. Thank you very much. Yeah, I'm so glad to be here and to be connected with you all. Uh, I would prefer to speak in Hindi because I think that's yeah, although I can manage in both. पर ये मेरा पहला एक्सप्रेशन है और मुझे हिंदी में अपने आप को अभिव्यक्त करने में बहुत खुशी होती है और हिंदी मतलब मैं कहूँगी हिंदुस्तानी में क्योंकि उर्दू का भी पढ़ने लिखने का खास शौक मुझे रहा और मुझे अपने परिवार में वो चीज़ मिली भी तो बहुत खूबसूरत भाषा है हमारे पास और मुझे लगता है कि ये सबको अच्छा लगेगा और जहाँ ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर इंग्लिश के टर्म्स जहाँ ज़रूरी हैं उनको ट्रांसलेट कर दूँगी बहुत खुशी है कि मैं थैंक यू वेरी मच उषा Thank you, Samvedana. Can you tell our viewers and listeners a bit about yourself, growing up in Bhopal, and how did you get into storytelling? What drew you into this field? मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आई वाज़न्ट ड्रॉन इन अ वे मुझे लगता है आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन दैट और सबसे छोटे सिबलिंग होने के कारण या 5 ब्रदर सिस्टर्स 5 भाई बहन हैं और मैं बहुत छोटी हूँ तो आई एम ऑलमोस्ट लाइक अ किड सिस्टर टू माय एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स और वो माहौल मुझे घर में मिला जिसके कारण मुझे शायद मैंने आँख ही म्यूजिक में और थिएटर क्योंकि कोई एक भाई बहन थिएटर कर रहा होता था कोई गा रहा होता था पिता मेरे राइटर थे और सिर्फ राइटर नहीं बहुत खूबसूरत इंसान थे बहुत ही अच्छे और टीचर का परिवार था बहुत हम्बल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से मैं आती हूँ जहाँ मेरे फादर ने प्राइमरी स्कूल टीचर की हैसियत से काम करना शुरू किया पर उनके हौसले बहुत बुलंद थे और विजन बहुत अच्छा था और बहुत मेहनती थे और ही वाज एन आर्डेंट लवर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड थिएटर एंड लिटरेचर तो वो चीज़ें जाहिर हैं घर में वही होता था मुझे एक पल भी अपने घर का ऐसा याद नहीं है जब हम लोग कोई भी एक छोटी सी मतलब ऐसे ही बैठ के गॉसिप कर रहे हों या बस जोक्स क्रैक कर रहे हों मज़े हम बहुत करते थे लेकिन या तो कोई राइटर आ रहा होता था या कोई पोएट आ रहा होता था या कोई ना कोई भले ही वो रीजनल लैंग्वेजेस के हों वर्नाक्युलर्स के हों कोई मलयाली अगर राइटर शहर में आया है भोपाल में तो वो हमारे घर ज़रूर आएगा कोई वॉयलिनिस्ट आया है तो वो ज़रूर आएगा और बाकायदा माय फादर विल मेक श्योर कि वो बैठेंगे और वो बजाएंगे और वो सुनाएंगे और हम सब बच्चे सुनेंगे मेरे पिता भी जब पहली कोई कविता लिखते थे तो सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे पर सिर्फ यही नहीं था उतनी ही शिद्दत से और मज़े से घर में खाना भी बनता था घर में लोग खाना भी खाते थे और बाकायदा मतलब एक इवेंटफुल ऐसा लगता था हमारा चलता फिरता नौटंकी हमारा घर था लेकिन उसमें साइंटिफिक रीजनिंग भी थी माय फादर वाज अ वेरी सेक्युलर पर्सन वेरी प्रोग्रेसिव ही मेड श्योर कि उनकी चारों बेटियां और हमारे सबसे बड़े बस एक भाई हैं सब पढ़ें लिखें लेकिन उसके साथ साथ हर चीज़ का एक्सपोजर हमको बहुत अच्छे से मिला तो उसमें मैंने आँख खोली तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ माँ बाप का ही नहीं माता पिता का ही नहीं मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती थी ढोलक बजाती थी बाकायदा हमारे घर मतलब सेलिब्रेट होता था मैंने अपने घर में हमेशा उत्सव ही देखा है तो 2 धाराएं बहती थी माय फादर वाज अ कॉमरेड माय मदर वाज अ हार्डकोर ब्राह्मण तो दोनों के उस मामले में विचार नहीं मिलते थे लेकिन मैंने
कभी भी मेरे फादर को, मेरी माँ को रोकते नहीं देखा किसी भी चीज़ के लिए। तो जन्माष्टमी होती थी तो वो खुद ढोलक बजाते थे और कहते थे मैं पूजा नहीं करूँगा लेकिन मैं गाऊँगा ज़रूर, और फिर भजन गाए जाते थे और हम लोग डांस करते थे। तो एक इस तरह का माहौल जिसको बोलते हैं टॉलरेंस का, प्यार का, और ये चीज़ें तो शब्द और संगीत जीवन में बहते थे हमेशा से। मैं और मेरे से जो बड़ी सिस्टर हैं उनमें सिर्फ 1.5-2 साल का अंतर है, और हम लोग बिल्कुल दोस्तों की तरह ही रहे। और इसीलिए मैं आज भी जब लिखती हूँ तो मैं संगीत के बिना नहीं लिख सकती। मुझे नहीं मालूम कि लोग संगीत के बिना कैसे जीते हैं। तो वो सितार बजाती थी और उन्हें, वो म्यूजिशियन है, तो वो बजाती थी और मैं किताब कलम कब ले आती थी मुझे मालूम नहीं है। आज भी हम लोग दूर हैं लेकिन हम म्यूजिक के बिना हम नहीं रह सकते, और ना वो कुछ लिखा हुआ सुने बगैर रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें मुझे मिली, लेकिन बचपन से डांस का बहुत शौक, बहुत ज्यादा, और खास तौर पे फोक डांस और सारी चीजें, जबकि कथक भी हमने बाकायदा बिना गुरु के अपनी बहनों से सीखा। तो हमारे घर में परफॉर्मेंसेस को इतना सीरियसली लिया जाता था जैसे घरों में पढ़ाई को लिया जाता है। तो बाकायदा जैसे घरों में ये होता है, मैं दूसरों के घरों में जाती थी तो सुनती थी, अरे तुम डांस कर रही हो, तुम पढ़ना नहीं है। और हमारे घर में ऐसा होता था, अरे कल तुम्हारा कंपटीशन है और तुम ऐसे घूम रही हो। तो बाकायदा मतलब मेरी बहन, मुझे जो एक और मेरी 2 नंबर की सिस्टर है, वो कथक सीखती थी, तो वो हमें घर में पता चला ठाट सिखा रही हैं और तत्कार सिखा रही हैं, और ऐसे देखो और कैसी स्टेज प्रेजेंस होनी चाहिए। बाकायदा कॉस्ट्यूम पर भी उतना ही टाइम जाता था। बहनें लगी हैं, गोटा लगा रही हैं और कोई कुछ कर रहा है। तो मेरे लिए आर्ट उतनी ही एक जरूरी चीज थी जितनी हमारे घर में पढ़ाई को और किताबों को इज्जत दी जाती थी। घर में 4000 किताबें थी और बाकायदा हम उसका ख्याल रखते थे। पापा बहुत ज्यादा पढ़ते थे और उतनी ही शिद्दत से तबला भी बजाते थे, और उर्दू की नज्म भी सुनी जाती थी, पढ़ी जाती थी, और वहीं मैंने उर्दू भी सीखी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जब मैं डांस नहीं कर पाई एक समय के बाद, क्योंकि जैसा होता है हम माँ बनने के प्रोसेस से गुजरे और तमाम चीजें, शादी की तमाम एडजस्टमेंट्स हुए। लाइफ इज डेफिनेटली नॉट अ केक वॉक, और उतार चढ़ाव आए जैसे हर स्त्री के जीवन में आते हैं। तो धीरे धीरे मैं, एक समय आया जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो मुझे लगा जैसे मैं तो हर चीज से दूर ही हो गई, और बहुत मुश्किल समय एक मैंने भी निकाला, और तब इन सब चीजों ने मेरा साथ दिया। और जब मेरी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो वो शायद वो समय भी था जब मैं उसको एक फिर से किताबों का एक रेनेसांस मानती हूँ अपने इंडिया में, क्योंकि बीच में बच्चों की अच्छी किताबें बहुत पब्लिश नहीं होती थी। हमने तो खैर बहुत अच्छी किताबें पढ़ी, क्योंकि यूक्रेनियन, यूगोस्लावियन, रशियन फोकटेल्स बहुत आती थी, क्योंकि माय फादर वाज अ सोशलिस्ट एंड सो, बट एक समय हम लल पीरियड था। लेकिन फिर से मैंने जब देखा मुंबई आने के बाद कितनी अच्छी किताबें थी, तो मुझे बड़ा मेरे अंदर का, मुझे लगा बचपन गया ही नहीं, एक बच्चा भी जिंदा था। और फिर मैंने उसको फिर से जीना शुरू किया अपनी बच्ची के साथ। तो फिर धीरे धीरे क्योंकि पोस्टमार्टम बहुत चीजें थी, वेट गेन हो गया, तो मुझे लगा मैं इतना डांस नहीं कर पाती, लेकिन पता नहीं कैसे धीरे धीरे स्टोरीज की तरफ मेरा सारा जो इंक्लिनेशन है, वो सारी चीजें मेरी उसमें निकलती गई। और मुझे लगा कि ये मेरी बहुत ट्रू कॉलिंग की तरह था, जो कि क्योंकि एंकरिंग करती थी, ओरेटर थी स्कूल कॉलेज में, और काफी एक्टिव रहती थी, लेकिन कभी भी मुझे उस तरह से एम्बिशन ने नहीं घेरा, और आज भी नहीं है। तो मैं अपनी तरीके से एक पीसफुल जिंदगी को पसंद करती हूँ। खूब ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, डांस करना, सुनना। तो उस लिहाज से फिर स्टोरी टेलिंग की तरफ आई, और ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है गीता रामानुजन जी, जिनको मैं अपना गुरु जैसा मानती हूँ। और जब मैंने उनको देखा और मैं देखती चली गई, तो वो मुझे इतनी अच्छा व्यक्तित्व उनका लगा, और इतनी प्यारी लगी वो जिस तरह से वो चीजें करती थी, और पता नहीं कब मैं बहुत रिलेट करती चली गई उनसे। फिर फाइनली एक वक्त आया जब हालांकि मैं लिख रही थी, मेरी अपनी किताब आ चुकी थी, मुझे उस पर पुरस्कार मिल चुका था, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था एज अ जर्नलिस्ट भी काम करते हुए कि अभी कुछ जैसे कमी रह गई है। जैसे लिखती थी लेकिन मुझे लगता था कुछ 3D चाहिए करने को, तो या तो मैं फिल्म डायरेक्शन करती या कुछ, पर फिर जैसे भी हालात थे जो, तो मुझे लगता है शायद पूरी कायनात जुट गई एक तरफ मुझे ले जाने में, और बहुत अच्छा हुआ। और फिर धीरे से इस तरह से मैंने कथालय में गई, और फिर चीजें खुलती गई, तो फिर बहुत मजा आया। और फिर तो अब क्योंकि पढ़ती बहुत हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक है, फोक टेल्स से बहुत ज्यादा प्यार है, तो तमाम चीजें उसमें देखी। तो एक राइटर
एक परफॉर्मर, एक म्यूजिक और डांस लवर होने के नाते वो सारी जो रास्ते हैं वो इसमें खुलते चले गए, और अब तो बहुत मजा आ रहा है। तो ये एक जर्नी है जो मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक एंजॉय करना चाहती। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एन्जॉय कीजिए संवेदना। वी बोथ हैव दिस इन कॉमन दैट आई एम आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ कथालया, गीता रामानुजम। Yes, एंड और आपने एक बहुत ही you narrated such a wonderful story of how you organically got into storytelling. और मुझे ये नहीं पता था कि आप सिंगर भी हैं और गाते भी हैं, तो आपको कुछ तो गाना गाना ही है। नहीं, मैं सिंगर नहीं, मैं डांस करती हूँ। बेसिकली तो मैं काफी ज्यादा हूँ। तो लेकिन ये था कि शौक बस बहुत आई अप्रिशिएट, पर काश मैं होती या गिटार बजा सकती या फ्लूट बजा सकती, और इसीलिए मैं बहुत सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट भी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे कई बार वो कमी खलती है कि काश मैं फ्लूट बजाती तो मैं और ज्यादा अपनी स्टोरी टेलिंग में इजाफा कर सकती थी, बहुत कुछ ऐड कर सकती थी। और कल तक भी मैं इस चीज के लिए मैंने कहानी लिखी भी है कल तक, और मैं चाह रही थी कि आप सुनाऊं, पर वो उसका फाइनल मैं उसको एडिट नहीं कर पाई। तो लेकिन उस मैंने जिस चीज पर मैंने उसको बेस किया है, तो मैं वो दिखाऊंगी जरूर, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। जो फॉरेस्ट विसल है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जंगल की कहानियों को मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, जंगल के कनेक्ट को और देहात के जीवन को, रूरल जो हमारे यहाँ का जीवन है, उससे मैं अपने आप को, मैं सारी जिंदगी अर्बन उसमें पली बढ़ी, लेकिन न जाने क्यों मैं वहां से अपने आप को रिलेट करती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक देहाती सोल है, एक जंगल का कनेक्ट है, और बार बार इसलिए वो मुझे वहां की कथाओं की तरफ ले जाता है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू कनेक्ट, नथिंग बट थ्रू folk tales. Yeah, folk tales. तो संवेदना जी, हमारी ये है खूबियत, यूएसपी ऑफ स्टोरी टेलर्स कैफे इज टू टेल स्टोरीज बिकॉज वी वांट टू लिसन टू स्टोरीज। तो आप शुरुआत कीजिए अपनी कहानी से और हम कहानी की बातचीत करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो मैं एक अपनी लिखी सुनाने वाली थी, लेकिन मुझे उसमें खुद ही मजा नहीं आया, तो कभी और पर एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो जैसा कि हर परिकथा और हर लोक कथा शुरू होती है, एक बार की बात है। तो एक बार की बात है भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में, जहां हिमालय की तराई है। उस हिमालय की तराई में एक राज्य था। नेपाल और भारत की तब सीमा नहीं थी, ये उस वक्त की कहानी है। और वहीं के एक राज्य का एक राजा था। अब राजा जो था, उसकी एक बेचारे की बड़ी दुविधा थी कि न जाने कब राजा के सर पे उगाए थे 2 सींग। अब जब राजा के सर पे 2 सींग उगाए, तो राजा जाहिर है ये बात छिपाना चाहता था हर किसी से। तो राजा ने अपने लंबे घने काले बाल कर लिए। किसी तरह राजा ने ये बात रानी से भी छिपा ली, अपने मंत्रियों से भी छिपा ली, सब नौकर चाकरों से भी छिपा ली। लेकिन एक बार यूं हुआ कि राजा के राजमहल में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और जैसी कि परंपरा है, राजा को न चाहते हुए भी अपने सारे बाल उतरवाने थे। तो राजा ने बुलाया अपने नाई को, he called his barber। और राजा ने जब अपने नाई को बुलाया और जब अपने सारे बाल उतरवाए, तो नाई को तो ये पता पड़ गया कि राजा के सर पे हैं 2 सींग। राजा उससे बात नहीं छिपा पाया। राजा ने उसको बोला, खबरदार खबरदार जो तुमने ये बात किसी को भी बताई। और राजा ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसको बहुत सारी सोने की अशर्फियां भी दे दी। राजा ने कहा कि तुमने अगर ये बात किसी को बताई तो समझ लेना तुम्हारी मैं खाल खिंचवा दूंगा। अब बेचारा नाई भी क्या करता, भी चुप हो गया, राजा की बात थी। अब राजा के बाल पूरे उतार के सारे काम करके नाई घर आ गया। अब घर आ गया, जाहिर है उसको इतनी सोने की अशर्फियां मिली थी, राजा ने हिदायत दे रखी थी, तो कायदे से तो उसको मुंह बंद करके रखना चाहिए था। लेकिन
बात भी तो ऐसी थी, करता क्या। बहुत देर हो गई, यहाँ वहां देखता रहा। उफ, उसके पेट में तो ये बात पच नहीं रही थी। क्या करे क्या करे, क्या किसी को बता दे? किसको बताए? बताएगा तो राजा खाल खिंचवा देंगे। पर सच ये है कि उससे रहा नहीं गया, और थोड़ी देर में उसने देखा, ये क्या, मेरा पेट तो फूलता ही जा रहा है, फूलता ही जा रहा है। और वो डर गया कि अरे, अगर ये बात सचमुच मेरे पेट में हजम नहीं हुई तो, मुझे कोई बीमारी लग गई तो, और क्या होगा, जो मेरा पेट फट गया। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ये तो ऐसी बात है कि मुझे किसी ना किसी को तो बतानी पड़ेगी। पर वो यही सोचते सोचते परेशान होके यहाँ वहां देख करके घूमता रहा। तभी घूमते घूमते उसे अपने घर के बाहर वाले खुले बरामदे में दूर दीवार पर कील पर एक बड़ा सा ढोल टंगा दिखा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस ढोल को ही बता दूं। क्या हुआ, कोई आदमी या इंसान थोड़ी ना है, ढोल ही तो है। तो वो जल्दी से अपना पेट पकड़े पकड़े ढोल के पास गया और बोला, पता है ढोल, पता है अपने राजा के ना सर पे तो सींग हैं। अब जा करके उसको शांति मिली। उसने देखा कि वापस उसका पेट उसकी जगह पर आ गया, उसका पेट का दर्द भी बंद हो गया। चलो, ये अच्छा हुआ, मैंने किसी को तो बताया, और वो तो ढोल है, वो किसे बताएगा। और बस अपना राहत पाके वो घर के अंदर चला गया। अब वो तो घर के भीतर चला गया और ढोल बाहर वैसे ही का वैसा टंगा था। तभी घर के बाहर जो गली थी, वहां से एक आदमी गुजरा। वो आदमी ढोल बनाने वाला, जो तबला बनाते हैं और भी चीजें साजो सामान बनाते हैं, वो था। और जब वो वहां से गुजरा तो उसे ढोल देख करके रहा नहीं गया। जैसे ही वो वहां से गुजरा तो उसने ढोल पर जोर से एक अपना हाथ फेरा, और जैसे ही उसने जोर से उस ढोल को बजाया, जो ढोल था वो जोर जोर से बजने लगा, ठम ढमाडम ढम, ढम ढमाडम ढम। अरे छोटी सी है बात ये, पर होती नहीं हजम। अपने राजा के सर पे दो सींग हैं, इतनी सी है बात, किसी से मत कहना। अब नहीं होती ये बात हजम, ढम ढमाडम ढम, ढम ढमाडम ढम। अब जो ढोल था वो इतनी तेजी से बोल उठा, तो जाहिर है वो आदमी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन शायद आसपास कुछ लोगों ने सुन लिया, और ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई। जब राजा को ये बात पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो राजा ने वो ढोल मंगवाया और गुस्से में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसने अपने महल की खिड़की से बाहर उस ढोल के टुकड़ों को बहुत जोर से फेंका। इतनी जोर से फेंका कि वो दूर महल के बाहर वाले बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ उगा हुआ था, जिसका की मोटा सा तना था, वहां जाकर के सारे टुकड़े टकरा गए। अब जैसे ही ढोल के सारे टुकड़े पेड़ के तने से टकराए, ढोल ने ये बात पेड़ को बता दी कि राजा के सर पे दो सींग है। अब एक दिन एक लकड़हारा आया और उसने उस मोटे से तने वाले पेड़ को काटा और उससे बड़ा सा आलीशान सुंदर दरवाजा बनाया। वो दरवाजा काफी बड़ा था और वो दरवाजा एक बड़ी सी हवेली में लगाया गया। अब हवेली में रहने वाले बहुत सारे लोग थे, तो जैसे ही हवेली में रहने वाले लोगों ने उस दरवाजे को खींचा तो ची से आवाज आई, और थोड़ी देर के बाद दरवाजा भी बोल पड़ा, पता है ची ची, पता है अपने राजा के सर पे ना दो सींग हैं। ये क्या, हवेली के लोगों को पता पड़ गया। हवेली के लोगों को पता पड़ा तो सारे गांव को पता पड़ गया, गांव को पता पड़ा तो सारे छोटे बड़े शहरों को पता पड़ गया, पूरे राज्य को पता पड़ गया कि हमारा जो राजा है उसके सर पे हैं दो सींग। अब ये बात सबको मालूम पड़ गई। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। राजा जानता था कि ये बात सिवाय
उसके नाई के और किसी को पता ही नहीं थी। तो उसने नाई को बुलाया। नाई बेचारा चुप रहा। नाई जानता था कि अगर उसने बात कबूल कर ली तो उसकी तो खैर नहीं। नाई ने कुछ भी नहीं बोला। अब राजा ये सोचने लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। वो इतना नाराज था कि नाई को कोई ना कोई दंड देना चाहता था। पर हर जगह के कुछ उसूल होते हैं, तो भले ही वो राजा था पर उसे भी कुछ उसूलों का पालन करना था। वो ऐसे ही कैसे उस नाई को कोई दंड दे दे। तो उसने पंचायत बुलाई। जब उसने पंचायत बिठाई तो सारे पंच परमेश्वर उसमें बैठे। एक तरफ राजा को बिठाया गया, एक तरफ नाई को बिठाया गया। और पंचों ने कहा नाई से कि पूछा कि भाई क्या बात है, तुमने क्या सचमुच में ऐसा किया है? तुमने क्या ये बात सबको बताई इसके बावजूद कि तुम्हें राजा ने सख्त हिदायत दी थी कि तुम ये नहीं बताओगे? अब जो नाई था बेचारा क्या करता। सारे लोग सामने बैठे थे और बचने का कोई उपाय भी नहीं था, कोई तरीका भी नहीं था। तो जो नाई था वो बोला पंच परमेश्वर आप ही बताइए, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, लेकिन आप बताइए कि अगर किसी को ये बात पता पड़ जाए कि राजा के सर पे तो सींग हैं और ये बात उसकी पेट में क्या पच पाएगी? तो मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ ना। देखो पंच परमेश्वर जी, आप ही बताओ, मेरा पेट तो फूलता जा रहा था। जो मुझे कोई बीमारी हो जाती तो, जो मेरा अगर पेट फट जाता तो क्या होता? अब ऐसे में क्या मैंने ये गलत किया कि मैंने तो सिर्फ ढोल को बताया? हुजूर मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैंने किसी को नहीं बताया था, सच कहता हूँ किसी को नहीं बताया। मैंने तो ढोल को बताया था। अब मुझे क्या पता था कि ढोल ही बज पड़ेगा, और क्या पता था कि ढोल फट पड़ेगा तो पेड़ से कह देगा, और पेड़ का बनेगा जब दरवाजा तो भी ये बात कोई नहीं छुपा पाएगा कि अपने राजा के सर पे तो सींग है। थोड़ी थोड़ी हंसी आ गई नाई को। अब पंचों ने ये बात सुनी। जो राजा था वो तो गुस्से से आग बबूला हो रहा था और उसको लग रहा था कि बस अभी पंच उसका फैसला करे और वो उसकी खाल खिंचवा दे। लेकिन पंचों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और आपस में सलाह मशवरा किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि नाई की इतनी भी कोई गलती नहीं है। सही बात है, अगर उसका पेट फट जाता तो आखिर ये बात किसी के पेट में पचेगी कैसे? और पंचों ने ये फैसला सुनाया राजा को कि इस बात के लिए भले ही एक बार नाई को डांटा या फटकारा जा सकता है, लेकिन उसे कोई बड़ा दंड तो नहीं दिया जा सकता। और पंचों ने ये भी कहा, राजा को ये फैसला भी सुनाया कि अब से यानी बिल्कुल कल ही से सुबह की सूरज की पहली किरण से राजा को और नाई को दोनों को फिर से दोस्त होकर के रहना पड़ेगा। राजा को ये फैसला मानना पड़ा और आखिरकार पंचायत खत्म हुई। राजा अपने महल में वापस चला गया और नाई अपने घर में। दूसरे दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जो नाई था वो बहुत सारे सुगंधित तेल की बड़ी सी टोकरी लेकर के राजमहल पहुंच गया। नाई था, दुनिया में किसी को भी रोका जा सकता है, पर नाई को अंदर तक भीतर तक राजा के शयन कक्ष तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और जो नाई था वो टोकरी लेकर के पहुंचा और बोला, नमस्कार राजन। नमस्कार राजन, पता है मैं आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे काम के सुगंधित तेल लेकर के आया हूं। क्या है ना राजन, अब मैं सुबह से दोपहर से शाम यहीं रहूंगा राजमहल में आपकी सेवा में। सुबह आपकी इन सुगंधित बढ़िया तेलों से अच्छी अच्छी चंपी करूंगा और दोपहर को आपकी मालिश करूंगा। आपके सर पे फिर से बहुत सारे बाल उग जाएंगे
और सच कहता हूँ, यहाँ दिन भर राजमहल में जो भी लड्डू, पेड़े, समोसे, कचौड़ी, अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी, खूब खाऊंगा, खूब खाऊंगा, अपने पेट को इतना फुलाऊंगा कि जब उगेगा आपका तीसरा सीन, तो सच कहता हूँ, तब तो मैं इस बात को अपने पेट में ही पचाऊंगा, किसी से नहीं बोलूंगा, है ना राजन? सच कहता हूँ, किसी से नहीं बोलूंगा राजन, इस बात को अपने पेट पे ही पचाऊंगा। तो ये कहानी है। बहुत खूब, बहुत खूब. I haven't heard this version of the third horn growing. Very nice, संवेदना. इतना अच्छा लगा कि हिंदी सुनने में, I love listening to very well spoken Hindi. My mother's family is from Delhi, though we are South Indians, पर वो इतने अच्छे हिंदी बोलते थे, my मासी and मामा and my cousins. और मैं खुद 3 साल झांसी में थी, तो आई हैव हर्ड द लवली बुंदेलखंडी हिंदी, पर मुझे तो बोलना नहीं आता है, बट आई एम मच बेटर देन द बॉम्बे हिंदी, the street side Hindi. It is so nice to listen to a language, the cadence, the tone, the musical tenor of stories. So it's beautiful. तो वर्नाक्युलर्स का भी असर आता है. वी आर ऑल्सो फ्रॉम बुंदेलखंड, तो बुंदेली जो पन है और जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका लोहा तो हर कोई मानता है. मेरे फादर ने भी बुंदेली में काफी कविताएं लिखी, लेकिन हम कभी बुंदेलखंड गए नहीं. लेकिन मैं वहाँ के सेंस ऑफ ह्यूमर को और वहाँ की जो रिचनेस है बहुत संपन्न है. जितना वहाँ पे दरिद्रता है टोपोग्राफिकली और जोग्राफिकली काफी ज्यादा, क्योंकि वहाँ ज्यादा चट्टानी इलाका है तो चीजें इतनी नहीं होती, तो उतनी ही लेकिन वहाँ की संपन्न भाषा और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है. तो मुझे लगता है कि वो एप्रिसिएशन भी कहीं ना कहीं आपको उसकी समझ मिलती है और उसमें मजा आता है. बिल्कुल. Samvedana, if you want to share something about the layers in the story, this is a very well loved, well known folk tale, and Greek myth also. You have the story of King Midas who has ass's ears. तो वो भी एक कहानी है, about when you talk about Greek mythology. तो ये एक folk tale है. This is a folk tale. तो आपकी शौक folk tale में है, and you presented papers on fairy tales, and you have done the pedagogical approach. You've been to Bali. Could you tell us about that journey of yours? Yeah, actually कहानियों से प्रेम तो बिल्कुल एक क्लिक वाले प्रेम की तरह था, कि जैसे बोलते हैं ना, देख के प्यार हो जाना, डुआना. वो तो खैर होता ही है. अगर आप अच्छी कहानी सुनते हो, पढ़ते हो, तो यू डू फॉल इन लव. और बचपन की वो चीजें थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था. मेरे पिता इतनी मतलब, अब तो खैर टेलीविजन होता है, जब हम लोगों की वेकेशंस होती थी तो मुझे याद है एक पाइल ऑफ स्टोरी बुक्स लाते थे, और तमाम पूरे ग्लोब की आती थी. तब ऐसा नहीं था कि अभी आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू रीड ऑल फोक टेल्स. तो वो ये बेचारे बड़े परेशान होते थे, क्योंकि हम लोग के अंदर क्रिएटिव एनर्जीज कुछ ज्यादा ही थी. तो बोलते थे कि चलो अब ये तुम लोगों के लिए 3 बड़े फाइल्स हैं, और अब बिल्कुल मेरे दिमाग नहीं खाना. तो पूरे छुट्टियों में, पहले होती भी 2-2.5 महीने की छुट्टियां थी, तो अब इसको पढ़ना. लेकिन हम इतनी जल्दी इतने ज्यादा उसमें डूब जाते थे, इतना मजा हमें आता था, और हम उसको 15 दिन में पढ़ के खत्म कर देते थे. और फिर पापा से बोलते थे कि अभी तो खत्म हो गई, तो अभी और लाइए. फिर हम अमर चित्रकथाएं पढ़ते थे. तो अमर चित्रकथा का भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे स्टोरी टेलर बनाने में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी खूबसूरती से उसका डिपिक्शन, उसके इलस्ट्रेशंस होते थे. और मुझे याद है कि मेरी ग्रोइंग ईयर्स में जब मैंने नल दमयंती पढ़ा था, तो मुझे तो इतना मजा आया था, और मुझे लगता था कि आई थिंक इट इज मैंडेटरी इन एवरी गर्ल्स लाइफ कि उसकी जिंदगी में कोई ना कोई नल जैसा लड़का तो आता ही है. और रोमांटिसिज्म की वो जो शुरुआत थी, और इतनी खूबसूरती से बताया था. आज भी मुझे नल दमयंती में कई बार उठा के पढ़ती हूँ. तो ये सब चीजें तो थी, लेकिन अब जब बाद में एक बोलते हैं ना, एक
बहुत बड़ा एक फेज क्रॉस करने के बाद जिंदगी का, जब शादी हो गई, बच्चा हो गया, बिटिया हो गई और काफी उतार चढ़ाव से आप निकल गए, तो फिर मैंने कहानियों को जब बहुत, क्योंकि राइटर हूँ तो चीजों को सीरियसली बहुत ज्यादा लेती हूँ, तो फिर वो चीजें, वो वर्क, वो लेयर्स खुलना शुरू हुई। और जैसे जैसे आप कहानियों को समझते हो तो मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि आई वॉज नेवर इन लव विद प्रीची स्टोरीज, नेवर। जहाँ पे भी चीजें डायडैक्टिक हो जाती थी, जहाँ पे मैं कभी भी किसी स्कूल में जब जाती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ टीचर्स को भी, प्लीज बच्चों को ये मत बोलना कि इस स्टोरी का क्या मैसेज है, मैसेज नहीं है, मैसेज वर्ड निकाल दीजिए, इसको भूल जाइए, और बच्चों को खुद से अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने दीजिए और लेट देम फॉल इन लव विद whichever element of the story they like. That's the way I told you ki Nal and Damayanti was something which was like, which told me how love should be, और एक मेरी रोमांटिसाइज करने की जो पहली शुरुआत है वहां से होती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इवन जो अमर चित्र कथाओं के इलस्ट्रेशंस में जो उनकी कॉस्ट्यूम्स होती थी, एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट सो ग्लैमरस, और जो उनकी ज्वेलरी और सारी चीजें, तो मैंने तमाम तरीके से कहानियों को जो लिखा गया और जो नहीं भी लिखा गया, यानी कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो, सो अ स्टोरी इज अ होल थिंग। तो स्टोरीज में मैसेज हमेशा नहीं इम्पोर्टेंट है, कितने सारी दूसरी चीजें हैं जो कही जाती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि फिर धीरे धीरे इस तरह से जब चीजों को देखना शुरू किया तो रियलाइज हुआ कि उसके पेडागोजिकल एस्पेक्ट तो डेफिनेटली हैं। अच्छी कहानी है तो उसकी तमाम चीजों से आप सीखोगे, जैसे कि अभी मैंने ये कहानी सुनाई है, तो ये छोटी सी एक कहानी है जो शायद 3 पैराग्राफ में खत्म हो जाती है, और कहानी को कभी भी एनेक्डोटल फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। हम यही गलती मोस्टली करते हैं। उसके एनेक्डोटल जो उसकी खासियत है वो है, और लेकिन उर्दू में एक बहुत प्यारा लफ्ज होता है खुसूसियत, है ना। तो खुसूसियत मतलब अगर हम इंग्लिश में उसका तर्जुमा करेंगे तो एक जो कैरेक्टरिज्म है, जो पर्टिकुलैरिटी होती है, तो ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से प्रयुक्त होता है। एक जो डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी है, तो जो डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी है, अगर अच्छी कहानी है तो अच्छी फोकटेल है, और अगर फोकटेल सदियों से चली आ रही फोकटेल एक ऐसी है, आपको एक ऐसी एंथोलॉजी में मिलती है विच इज देयर, तो ऑब्वियसली ये तो है कि समय के साथ वो मरी तो नहीं है, इट इज स्टिल ब्रीदिंग, यू नो, इट इज ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ सम रीजन। लोगों ने उसमें कहीं किसी तरह से कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफाई किया है, और जो लोक कथाएं होती हैं वो लोग बहुत, जैसे मैंने इसी कहानी को मैं बोलते बोलते मैं अडॉप्ट कर जाती हूँ, और कई बार बहुत कॉन्शियसली भी अडॉप्ट करती हूँ, सॉरी। तो ये होता है, इसीलिए जैसे ये कहानी है तो इस कहानी में एक चीज आई जो कि जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, कि उसका जो ढोल था वो बाहर के बरामदे में, घर के बाहर वाले बरामदे में टंगा हुआ था। ये जो क्लैरिटी है ये बहुत ज्यादा आती नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होती है लोक कथाओं में। देखिए इस तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान आपका वो करना चाहूंगी, इसको बहुत समझने की जरूरत है कि एक जो लोक कथा है वो वहां की लोकलाइज्ड जरूरतों को पूरा करती है, ठीक है ना। तमिलनाडु की लोक कथा है तो कुछ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, उसमें लोक कहानियों में उनको कहा नहीं जाता, इसलिए 3 पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ में कहानी खत्म हो गई, पर वो कम्युनिकेट हो गई, संप्रेषित हो गई और लोगों को समझ में आ गई, उन्होंने आत्मसात कर ली, एसिमिलेट कर ली। लेकिन जब हम अब कहानियां सुना रहे हैं तो अभी की परिस्थितियों में जो कंटेम्प्रेरी जो समय है उसमें ना बच्चे उस जगह को बिलोंग करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम, अगर जैसे हिमालय की तराई की ये कहानी है तो हम वहीं सुना रहे हैं। आज मैं इधर मुंबई में बैठ करके वो कहानी सुना रही हूँ और पूरी दुनिया में इसका टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो मैंने बहुत धीरे से, बहुत सटल वे में, बहुत सूक्ष्म रूप से मैंने ये कहा कि उसके बाहर, घर के बाहर खुले बरामदे में ढोलक टंगी थी। हाँ, ये कहानी में कहीं नहीं आता, और वो इसलिए कहा क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं ये कहूंगी कि ढोलक टंगी थी और वो घर के भीतर चला गया उसे बजा के, ढोलक को बता करके ढोल को कि राजा के सर पे तो सींग है, और कोई आदमी दूसरा वहां से गुजरा और उसने मारा, तो क्या कोई उसके घर में आया? तो एक खास तरह के घर होते हैं,
खास तरह के जगहों पे। जब वहीं के बच्चों को वो कहानी सुनाई दे जाती है तो उनको तो पता है, उनके लिए वो एक उनके डिफॉल्ट में सेट है, उनको पता है कि ये घर में बाहर का जो बरामदा है वो खुला हुआ है और वो गली में खुलता है। लेकिन यहाँ हमको कहना पड़ा, पर मैंने इतने धीरे से कहा कि आपको एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन आपने विजुअलाइज कर लिया। तो पहली बात तो कहानियों से इतना प्रेम जरूरी है ना, और सुनाने से भी प्रेम होना जरूरी है। कि इसीलिए स्टोरी टेलर जो होता है, चाहे वो लिखते वक्त हो या सुनाते वक्त हो, उसको ही अच्छे स्टोरी टेलर और दूसरों में यही फर्क होता है कि जब तक वो खुद नहीं देख रहा कहानी को, तो वो दूसरा जब जो सुनेगा तो वो तो उसका 1/4 ही जाएगा उसके पास। अगर आप चाहते हैं कि उतनी ही कलर्स के साथ, उतनी ही डिटेल के साथ, तो एक एक चीज है कहानी की जो कि आपको अपील करनी चाहिए, आपको समझना चाहिए, और तब आप उसको सुनाते वक्त आप उसको इतना कॉन्शियसली सुनाते हैं, पता नहीं लगता लेकिन वो चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे टोपोग्राफीज होती हैं, जो मतलब जमीन की जो संरचना है, कहाँ ऊंचाई है, चढ़ाई है, पेड़ कैसा था, कितना मोटा था, घना था, और हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। जहां तक इस कहानी का सवाल है, इस कहानी को तो मैं न जाने कितनी तरह की जगहों पे इसको यूज कर चुकी हूँ, क्योंकि इसमें एक तरह की इर्रेप्रेसिबिलिटी का एलिमेंट भी है, जहां पर एक ऐसी बात है जो ऐसा विजडम आज के दौर से रिलेट करके ही देख लीजिए कि राजा के सर पे तो सींग है। अब ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि कोई ऐसी बात है तो आप लाख चाहें कि वो छिपा ली जाए, राजा लाख चाह ले, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें पहुंचना ही चाहिए लोगों तक। इसके तो इट हैज टू रीच एनीवे। तो इस कहानी में तमाम चैनल्स ढूंढ लेती है ये जो बात है लोगों तक पहुंचने की। अब वो चैनल सोचिए, इनएनिमेट चैनल भी है, ऐसी चीज जिसमें जान नहीं है, तो ढोल है, ढोल बोल पड़ रहा है, यानी एक, और ये बात कितने जस्टिफाई की गई है कि भाई उस ऐसी बात है तो उसके पेट में नहीं पचेगी और पचनी चाहिए नहीं, और आखिरकार पंच भी उसका साथ दे रहे हैं। तो कुछ बातें हैं जो रोके नहीं रुकती और ना उन्हें रोका जाना चाहिए। इसमें पावर डायनामिक्स भी है कि एक तरफ समाज का सबसे छोटे उस पे बैठा हुआ व्यक्ति है, नाई है, बार्बर है, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो सबसे पावरफुल है, और पर he has to abide by what is being decided by punch, you know। तो एक हमारे यहाँ की जो एग्रेरियन सोसाइटी कह लें, हमारे यहाँ की जो कृषि प्रधान, हमारा जो गांव की अपनी पावर है, हमारा जो सिस्टम है, तमाम चीजें हैं। तो पावर डायनामिक्स आती है कि किस तरह से किसी से भी छिपा सकते हैं आप, लेकिन जो नाई है उससे आप अपनी बहुत निजी चीजें नहीं छिपा सकते। दैट इज अनदर फन इन दिस, क्योंकि वो एक नाई एक ऐसा व्यक्ति है या नाइन, आज से नहीं पुराने जमाने से, जिसकी जो अप्रोच है, जिसकी एक्सेस जो है आपके घर के बेडरूम तक है, तो उसको सारी गॉसिप मालूम है। आप चाहे आप अपनी रानी से भी छिपा सकते हैं, लेकिन आप उससे नहीं छिपा सकते, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, उसकी एक जगह है समाज में, आपके जीवन में। even today, Samvedana, sorry for my interjection. Yeah. When you go to a salon, a beauty salon, you share everything with your hairdresser. Exactly. You know, you open your heart out, you know. So actually, this actually affects. I mean, it is true even today. And this is to my viewers. Samvedana ji ne kahani nahi sunai aapko, but we understood the layers, the gold within that story. So this is how Westerners call it. Let's do a workshop on gold within the story. So for over 10 weeks. But I mean, you have so beautifully also told a story about the story, which is so interesting. And this is something I hope the listeners and viewers of Storytellers Cafe have enjoyed it. ये एक अलग ही किस्म है. This is a different aspect to storytelling, which is equally important. Yes. Thank you, Samvedana.
तो आप कुछ कहना चाहेंगे? या अगर इसी बात को आगे बढ़ाकर भी देखें तो जैसे मुझे डेफिनेटली फनी स्टोरी तो है ही, और जब बच्चों को सुनाती हूँ तो बिल्कुल अलग तरीके से सुनाती हूँ। उन्हें तो इसी में ही मजा आता है कि जो मैंने तुक बनाई है बाद में कि मैं आपके महल में रहूंगा, मतलब लुक एट दिस कि उसकी क्या कॉन्फिडेंस है कि मैं आपके महल में रहूंगा, लड्डू पेड़े खाऊंगा, पूरा दिन रहूंगा और इतना पेट को फुलाऊंगा। मतलब इफ यू वांट थिंग्स टू स्टे इन माय टमी एंड इफ यू वांट मी टू हाइड योर सीक्रेट्स, देन यू हैव टू ब्राइब मी एज वेल। तो बच्चों को बिना ये कहे कि ब्राइब देना है, उन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, पर छोटी छोटी चीजें होती हैं। पर ये इसमें एक मजा है कि कोई भी चीज दुनिया में ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। हर चीज का मतलब एक डुअलिटी में एग्जिस्ट करती हैं चीजें। तो आप बच्चों को बहुत डायडैक्टिक वे में नहीं सिखाओगे, इसीलिए बड़ी पावरफुल होती हैं स्टोरीज कि आपने एक उनको ऐसा विजडम दे दिया कि बच्चे ने अगर बचपन में ये सुना है तो वो जानता है कि इस दुनिया में भले ही अच्छाई अपनी जगह है, बुराई अपनी जगह है, लेकिन you have to be vigilant, smart, not being victimized all the time, even if you are on the lowest position sometimes. So how beautiful. इसीलिए नानियां दादियां अगर जो कहानियां सुनाती थी और जिनने वो बचपन में सुनी है, I think those adults have turned out to be very wise, witty and very intelligent people. Yes. I every time I एक्सप्लोर दीज थिंग्स, एंड कई बार मैं बैठ के पढ़ रही होती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरी रोटा मुझे देख के हंसते रहते हैं कि अभी क्या मजा आ गया, अभी वही कहानी इतनी बार। मैंने कहा अरे कितनी बार इसको पढ़ो और सुनाओ, और हर बार एक जब बच्चों को सुना के आती हूँ तो हर बार मुझे भी एक नई चीज मालूम पड़ती है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं अरे ये अच्छा है, ये अच्छा है, पता चलता बच्चे किसी और ही बात पे हंसते हैं, तो मुझे लगता ओ हाँ ये भी हो सकता था। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसका ख्याल करती हूँ। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, और इसीलिए मेरा फोकटेल्स पढ़ने का तो मतलब मैं दिन दूनी रात चौगनी है, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। ये रुझान जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, एंड आई एम एंजॉयिंग इट सो मच। आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद फोक सॉन्ग्स, फोकलोर्स, और काश के डांस का तो कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ वर्कशॉप्स में किया भी, तो वो एक अलग से एक डिटेल उसकी जरूरत होती है। तो संवेदना मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इफ यू कैन टेल आवर लिसनर्स सम ऑफ द बुक्स of Indian folk tales, if you could name them, because that would be of interest, because हम बहुत ज़्यादा western folk tales या western fairy tales उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, and we concentrate on our myths and legends. पर folk tales हमारे हर region से है. I mean, the one folk tale one knows is A.K. Ramanujan's, collection of folk tales. पर आप और कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम बताएंगे हमें? ऐसे तो बुक्स बहुत मुश्किल है कि नाम तो है, लेकिन छोटी छोटी बुकलेट्स में भी पढ़ी हैं, जहां से जो मिलता है मैं ले लेती हूँ। जैसे कुछ कहानियां मैंने कथा और प्रथम बुक्स की मुझे मिली और उनको फिर मैंने अडॉप्ट किया। कुछ की मेरे पास एंथोलॉजीज हैं जो मैंने मंगवाई। A.K. रामानुजन की तो मैं सारी ही पढ़ती हूँ, और मुझे वो पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें मालूम भी पड़ती है, और बहुत सी चीजें चोरी, लोगों की चोरी भी पकड़ाई में आती है, और मालूम पड़ता है कि बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे लोगों ने कहाँ कहाँ से प्लॉट्स उठाए हैं और क्या क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है मालूम भी पड़ती हैं। और आप सॉरी, आई थिंक देयर सम स्पार्किंग हैपेंड, सो सॉरी, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम नॉइज। I hope all is good. Yeah, all is good. No, it's fine. I think किसी चीज की आवाज हुई, तो जब आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ये बात का एक डर रहता है। पुराने फ्लैट्स हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, आज तो बारिश का मौसम है आजकल। हाँ, तो ये लूज कनेक्शन कुछ है तो पता नहीं। खैर एनीवे, आई थिंक ये मेरे डेस्क में से आवाज हुई है। तो बस उसी तरीके से तो A.K. रामानुजन ऑफ कोर्स पढ़ते ही हैं, मुझे लगता है जो लोग जिनको शौक है। प्लस मैं जैसे चिल्ड्रन फेस्टिवल्स में जाती हूँ, जहाँ पे भी अच्छी किताबें मुझे मिलती हैं, मैं वो लेकर के आती हूँ। और बचपन से जो मैंने बहुत छोटे की मेरी यूक्रेनियन फोक टेल्स, आयरलैंड की, और ये नॉर्डिक इसकी, ये मैंने पढ़ी हैं। मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, अगर मुझे आप पहले बता देती तो मैं लिस्ट कर लेती, क्योंकि मेरी स्टडी में रखी हैं सारी।
तो No, you ये can drop it on our chat on I will, I will. evening. और बाकी So, कुछ फोकटेल्स पे जो लोग काम करते हैं, स्कॉलर्स हैं जो काम कर रहे हैं बर्कले यूनिवर्सिटी के और अलग जगहों के, तो मैंने उन किताबों को भी इकट्ठा किया है और उसको भी मैं पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेती हूँ। और अपने जब रिसर्च पेपर्स लिखती हूँ तो जाहिर है उसके लिए मैं जिन लोगों ने कहानियों पे काम किया है उन स्कॉलर्स को भी मैं काफ़ी मतलब कोशिश करती हूँ जितना पढ़ सकूँ। वो काफ़ी डिटेल्ड वर्क है लोगों का। तो कहानियाँ तो अलग अलग मिल जाती हैं, छोटी छोटी बुकलेट्स में, जैसे कुछ लगभग हर प्रांत की हैं मेरे पास। उत्तराखंड की कहानियों का एक मुझे हिंदी का बड़ी मुश्किल से मिला, तो वो मेरी स्टडी में रखा है, हिंदी का है। आई थिंक उनका नाम शायद हिमांशु है, मैं देख के बताऊंगी। तो वो कहानियां अलग है। टिबेटन फोक टेल्स की मुझे कहीं किताब मिली तो वो मैंने अलग से पढ़ी। मुझे पहाड़ की कहानियों से खास प्रेम है, नॉर्थ ईस्ट की तो बहुत ही ज्यादा। नॉर्थ ईस्ट की कुछ कहानियां मुझे बहुत अच्छी, शायद कथा या तुलिका बुक्स की कोई बुकलेट थी, काफी पुरानी हो गई है, मतलब ये बात आई थिंक 8-10 साल से मेरे पास कुछ कहानियां। तो पूरा एक तरीके से कलेक्शन है मेरे पास, तो ढूंढती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, निकालती रहती हूँ। इसके अलावा लिटरेरी कहानियां डेफिनेटली हैं, वो उसका एक अलग जॉनर है। और बाकी अडाप्ट करती हूँ और कई बार खुद भी लिखती हूँ। तो thank you, Samvedna ji. It was wonderful to listen to this wonderful folk tale, and also understand from you the layers, the subtle positioning of that dhol, and how it kind of adds to the story. yeah. So this is wonderful. It's been a pleasure to host you. Would you like to share any last thoughts on Storytellers Cafe? Yeah, of course. I had been watching what you all were doing, and it was really beautiful. आपका ये जो काम है, आपके इसके पहले वाली भी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, और मुझे लगता है it's not just a beautiful space, but I think ये बहुत अहम काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि स्टोरी टेलर्स की दुनिया और स्टोरीज की दुनिया को जितना समझते जाएंगे उतना कम है। साहित्य तो की तो जगह है ही, और जाहिर है ये इट इज अनदर ऑफशूट ऑफ लिटरेचर, लेकिन लोक कथाओं से, और जब बच्चों को या बड़ों को सुनाने के लिए हम चीजों से जुड़ते हैं, कहानियों को अडॉप्ट करते हैं, तो भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जैसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करा जाना चाहिए। कई बार मुझसे लोग बोलते हैं कि आपने ये आप कैसे बनी, क्या क्यों किया, तो मैं हमेशा कहती हूँ इट्स अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट ऑन माय पार्ट, क्योंकि पहली बार के क्लिक्स में और खुशियों में तो बहुत कुछ हुआ। कविताएं मैं न जाने कब से लिखती हूँ, मुझे नहीं मालूम, डांस का शौक है, सब चीजें हैं, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। लेकिन जब आप बच्चों के लिए काम करते हैं या कहानी सुनाते हैं, हालांकि मैं सिर्फ बच्चों को नहीं सुनाती हूँ, लेकिन वो काम मैं कॉन्शियसली करती हूँ, तो वो मैंने बाकायदा बहुत सोच समझ के किया। मुझे लगता है वो काम किया जाना चाहिए। और इसीलिए एक बात बस कहना चाहती हूँ आखिरी में कि लोक कथाओं को अडॉप्ट करना पड़ता है बहुत बार, क्योंकि बहुत रॉ होती हैं। कई बार मुझे भी कहानियां अच्छी तो लगती है, लेकिन कई बार इसमें बहुत सेक्सिस्ट रिमार्क्स होते हैं, बहुत ऑफेंसिव होती हैं, काफी रेशियल चीजें भी होती हैं। और अगर अच्छी कहानी है तो उसकी गुंजाइश आपको मिलती है कि आप उसको अडॉप्ट करें, और वो बहुत ध्यान रखना चाहिए उस चीज का, क्योंकि ये बाकायदा आपको किसी भी प्रांत की कहानी आपको बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी। तो ये हम इवॉल्व होके यहाँ तक आए हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर अरे ये कहानी पहले की है तो ये सही होगी, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि उस समय के हिसाब से वो जस्टिफाइड था, पर उसके कुछ एलिमेंट्स अच्छे हैं, होने चाहिए, लेकिन उसको डेफिनेटली हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और मैं बाकायदा करती हूँ। और कुछ चीजें नेचुरली हो जाती हैं, जैसे इसमें हुई। मुझे मालूम है तीसरे हॉर्न की बात नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा दिमाग खुरापात है जो आगे जाती है। मुझे लगा कि तो बहुत मजे की चीज है, तो तीसरा सिंह भी जब 2 उग सकते हैं तो तीसरा क्यों नहीं उग सकता। बिल्कुल, क्यों नहीं। Thank you, Samvedna ji. You are listening to Samvedna Amitabh Rawat. She likes to be called as Samvedna. And Samvedna also has been a guest lecturer at Sophia College in Mumbai. There are many accolades to her credit.
but do visit her Facebook page, and also we will put it in the bio. You can see, you can communicate with Samvedana at her email, and I will put it in the chat box on Sunday evening when you're watching the show. So please tune in to Storytellers Cafe. हम कोशिश करते हैं कि हर बार हर संडे कोई दिलचस्प स्टोरी टेलर कहानीबाज को ले आए, you know. So it's wonderful for me to host the show. I enjoy because I'm learning so much. और हमारे भारत में Indian storytellers are so wonderful. और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये, you know. आप खुद बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं और Yes. आपका क्रिएशन बहुत सुंदर है. Yeah, thank you. I hope all the international viewers in United States and other parts of the world are listening in. Please do drop in your comments because that kind of gives us more encouragement. Yeah. Thank you. Namaskar. Thank you very much. Thank you, Usha. Not at all. You're most welcome. Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत.